नमस्कार और आदाब अर्जय हमारी टीम की तरफ से। मैं सचिन कुमार और मेरे साथ है मोहित बरारिया। आप सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड में। तो आज की खूबसूरत मेहमान से आप सभी को रूबरू कराना चाहूंगा। सो लेट्स वेलकम छवि। तो छवि, कैसी हो आप? कैसा चल रहा है? हाय सचिन, हाय मोहित। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। पर दिल्ली में गर्मी बहुत बढ़ चुकी है और यही उम्मीद है कि आज ये गर्मी मैदान पे दिखेगी। बढ़िया बढ़िया छवि। माफ करना मोहित भाई, मैं थोड़ी देर बाद आपके पास आया, लेकिन अम्मा यार मुस्कुराओ, अगला मैच लखनऊ के साथ है और हम वैसे भी पिछला मुकाबला जीत के आ रहे हैं। तो मोहित भाई, कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? I'm very good, Sachin. My smile would have been wider if we would have won our previous game with a better margin. If we talk about the wickets, but nevertheless, we got two crucial points, which is a very prime factor in determining our position in this supreme points table. And yes, very cheerful for the same. I was worried at that moment. We might have given 15 extra runs after dismantling the core batting order of Kolkata. But I guess for me, Rahman Powell was the standout performer on that day with bat for us. We have got the momentum that we wanted, but don't forget, we have Lucknow ke Nawab in front of us, who are actually playing like Nawabs, and I think that battle is gonna be challenging. बिल्कुल 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 जनाब। और मैं पर्सनली बात करूं तो मैं भी दिल्ली के बॉलिंग परफॉर्मेंस से तो काफी ज्यादा खुश हूँ। काफी ज्यादा प्रभावित किया है ना दिल्ली के बॉलर्स ने। लेकिन हाँ, वो पहले मैच से भी हम मैंने बोला था कि वो मिडिल ऑर्डर टोटका मतलब अभी तक सुलझा नहीं Right. है दिल्ली का। तो वही हम मे बी नेक्स्ट मैच में सुलझ जाए। And लेकिन for अब that, I think Rishabh Pant, our captain, needs to lead from front. जब तक उनके बैट से रन नहीं आएंगे, I think this is not gonna solve for us because if we have seen कि अभी तक दिल्ली की तरफ से 550s आए हैं, three of which have scored by Warner, two of which is by Shaw. So we can't rely only on our openers. Yes, opening is a major part in our T20 cricket, but we can't rely 100% on our openers. They can't win the games every day for us. So I think middle order needs to step up. बिल्कुल बिल्कुल। सो छवि, व्हाट्स योर थॉट्स ऑन प्रीवियस मैच? First of all, I have to say our bowlers did a tremendous job. But as you said, our middle order needs a little more stability. अगर हमारी सक्सेस डे के 2-3 सालों में मिडिल ऑर्डर को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड ऋषभ पंत जो इतने सालों से वो करते आए हैं, अभी तक उन्होंने वो करा नहीं है, लेकिन उम्मीद है आने वाले उन मैचेस में हमें वो पुराने वाले ऋषभ पंत दिखेंगे। एंड अगर वो होता है तो इट विल बी वेरी हार्ड दिल्ली। बिल्कुल। बढ़िया बढ़िया छवि, मैं चाहता हूँ जो आपने बोला वैसा ही हो। तो हम पिछले मैच की बात करेंगे, पिछले मैच की कुछ मजेदार मीम्स के साथ। तो चलते हैं मीम्स पे। दिल्ली कैपिटल्स इन आईपीएल 2022। बेटा, अगर दिल्ली कैपिटल्स मैच जीतता है तो उसका मैन ऑफ द मैच का रिजल्ट पहले ही आ चुका है, क्योंकि अभी तक दिल्ली ने 4 मुकाबले जीते और चारों मुकाबले में कुलदीप यादव ही मैन ऑफ द मैच रहे हैं। तो हाँ, जिस तरह से वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मैन ऑफ द मैच बनता है उनका। But Sachin, I feel that yes, if we see that personally, then I think this is good for Kuldeep, but I don't think this is good for Delhi Capitals because this is not how a team game is played. You have to have a different winner every day, as we saw with in case of Gujarat Titans. They have won या 8 games and they have 7 to 8 different man of the match मैन ऑफ winners. द मैच, या So exactly that is my point. Yes, one of that award which was given to Kuldeep could have been given to Aksar, जो एक पिछले गेम में हुआ था. But apart from that, I think that Kuldeep was deserving. And yes, this is good for Kuldeep, but not good for Delhi even. Kuldeep Yadav against KKR, 4 wickets in first match and 4 wickets in second. Kuldeep redemption against KKR. This is so true. This is better than Dubey's against RCB, Saha against SRH, Krunal against MI, Rashid against SRH, and Chahal against RCB. Exactly. Very rightly एग्जैक्टली। mentioned. Very rightly mentioned here. फील द फेस। वैसे यार या मानना पड़ेगा, फिजूर रहमान ने एकदम फिस की तरह बॉलिंग करी है पूरे टूर्नामेंट में। हाँ, Exactly, बिकॉज Chavi. और जैसे जैसे Yes, वो नौकिया और लुंगी एंगड़ी के से आगे खेल रहे हैं वो, तो वो परफॉर्मेंस बिल्कुल. बनता भी है।
बिल्कुल. एंड इफ वी सी उनका पिछले 2-3 साल का ग्राफ, सो बिफोर लाइक प्रीवियस वर्ल्ड कप या प्रीवियस जो बांग्लादेश का होम टूर था T20 सीरीज का, उससे पहले ही वाज नॉट अप टू द मार्क जो हम फिज को जानते थे. बट सिंस देन ही हैज बीन अमेजिंग एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट पिक इन आवर ऑक्शंस. उमेश यादव अंडर आरसीबी अंडर केके. बट ये पर्सनली अगर बताऊं तो उमेश यादव का जो ग्रोथ हुआ है, मतलब पिछले कुछ सीजन में मतलब उनका परफॉर्मेंस वो उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस सीजन का जो स्टार्ट हुआ है, आई थिंक स्टार्टिंग के 3 मुकाबले उन्होंने 8 विकेट लिया था. और पेस Yes. कंसिस्टेंसी भी उनका अच्छा आ रहा है, लाइन लेंथ भी सही आ रहा है, और पेस 144 प्लस, लगातार 144 140 प्लस पेस से काफी प्रभावित किया है. बट आई थिंक जैसा हम उमेश यादव को जानते हैं दैट लाइक वो बीच बीच में थोड़ा ऑफ ट्रैक होते हैं. सो इस आईपीएल में भी बीच के 5 मैचेस में हुए थे जब लाइक ही वाजंट एबल टू पिक मोर विकेट्स अराउंड 2 or 3. बट आई गेस दिल्ली हैज प्रोवाइडेड दैट अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग हिम बैक इन फॉर्म अगेन. बट मोहित भाई, ये इस सीजन हम बात कर रहे हैं तो उमेश यादव बल्ले से भी अच्छा कर रहे हैं. लास्ट में बिल्कुल. अगर आते तो बैट से भी अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से रन कंट्रीब्यूट करते हैं टीम में. Exactly. He's giving his good hand to Russell and Pat Cummins at the end. या IPL points table is imbalanced. 11 trophies का भी bottom पे ज्यादा. Seriously, man. तो ये recently added team Gujarat Titans is playing with so much confidence. Yes, you can say a bit of luck is there as well, but 11 trophies at bottom of points table with Gujarat Titans. Gujarat Titans have 16 points, which is combined more than all of MI, CSK and KKR. So this is a great feat to achieve, man. रिवेंज ऑफ द यादव्स स्टारिंग उमेश एंड कुलदीप. वैसे यार मानना पड़ेगा, यादवों ने कमाल किया है इस पूरे टूर्नामेंट में. यादव बिल्कुल का नहीं, सीजन रहा है ये तो. बिल्कुल ये सही बात का. जैसे कुलदीप हमारे कैसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उमेश यादव ने भी अच्छा, बैट बॉल दोनों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये तो मानना पड़ेगा. एंड यादव की बात करें तो ललित यादव भी पीछे नहीं है. ही इज आल्सो स्कोरिंग सूर्य some कुमार good यादव runs. भी पीछे नहीं है. ओह बिल्कुल बिल्कुल. This is not stuffing, man. So, but yes, that was the meme segment from our preview. Going on to the next one, which is the numbers related to the next game. One team is in bottom half, which is DC. It is on 6th position as of now. Nicely placed on third is Lucknow. Lucknow is also coming here after 2 wins and DC with 1. So I think a momentum is there with both the teams. Lucknow with 2 wins more than Delhi and only 1 game ahead. So I think they are better placed in the points table if we compare them to Delhi. But if you talk about Delhi, we have the best net run rate. So in case अगर 16 पे कुछ लड़ाई झगड़ा होता है and if we fight with other teams, so I think we have a good chance of going ahead because 100% qualification is on 18 points. So yes, that was from the form update of both the teams clashing today. Let's go to Chavi, who have some crazy matchups with her. So, our first matchup is between Quinton de Kock and Kuldeep Yadav. कुलदीप यादव ने 14 बॉल्स में क्विंटन डिकॉक को 2 बार अपने फिरकी के जाल में फंसाया है 20 रन देके. तो उम्मीद यही Wow. है कि आज भी अपने फिरकी के जाल में फंसाएंगे उन्हें. But I feel ये तो होना that चाहिए. बिल्कुल. But I feel that he doesn't even get to bowl to Quinton de Kock because I feel that Khalil या शार्दुल स्टार्टिंग के ओवर्स में ही क्विंटन de Kock को वापस लगआउट में भेज दे. तो हमारा दूसरा इंटरेस्टिंग मैचअप है डेविड वार्नर और रवि बिश्नोई के बीच में. अब यहाँ पे फंसते हैं हम. 3 बार आउट कर चुके हैं रवि बिश्नोई उन्हें 6 बॉलों में और केवल 5 रन देके. Wow. This might be the highest wicket. This might be highest wickets of Ravi Bishnoi in T20 because grabbing Warner is such a big thing. And I guess when we last met Lucknow in this IPL, I think KL Rahul, फटाफट उन्होंने बिश्नोई को बुलाया जब वार्नर स्ट्राइक पे थे and he got the wicket और too. yeah. Exactly. So I guess this battle is gonna be interesting again. और हमारा थर्ड मैचअप है बिटवीन कृणाल पांड्या एंड ऋषभ पंत. ऋषभ पंत ने 158 के स्ट्राइक रेट से उन्हें 52 रन मारे हैं, लेकिन वो 3 बार आउट भी हुए हैं. हम चाहेंगे कि वो उनका स्ट्राइक रेट बरकरार रहे. स्ट्राइक रेट ऐसे ही
धमाकेदार स्ट्राइक रेट से बैटिंग करें। हाँ, लेकिन वो विकेट वाला कॉलम खाली रहे कृणाल पांड्या का, वो सही रहेगा, बट स्ट्राइक रेट बरकरार रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सचिन, I am even more excited to see them playing against each other after what Chavi has told. But Sachin, for just our viewers, can you please tell where is our match happening today? And I think you have some numbers related to that too. या ऑफ कोर्स। तो हमारा आज का मुकाबला वानखेड़े में होने वाला है, और जहां तक सबको पता है कि पिछला मुकाबला भी वानखेड़े में था जो हम जीत के आ रहे हैं। तो वानखेड़े का अगर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर बता दे तो 170 है, लेकिन वही अगर एवरेज फर्स्ट इनिंग विनिंग स्कोर है तो वही आप 10 से 15 रन आप ज्यादा ले लो, 180 टू 185 है। लेकिन हाँ, अगर इस आईपीएल सीजन में हम देखें तो स्टार्टिंग के फोर मैच वो जीता है जो चेस किया है, लेकिन उसके बाद 5 मुकाबला वो जीता है जो डिफेंड किया है। और फिर पिछला दो एट वानखेड़े, और फिर अभी पिछला 2 मुकाबला ऐसा हुआ जो चेस किया वो जीता है। तो आई थिंक फिर से मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है चेजिंग की तरफ। और हाँ, अगर हम बात करें दिल्ली और लखनऊ की, तो वानखेड़े पे दिल्ली और लखनऊ दोनों अपना स्टार्टिंग के 2 मुकाबले हार के आए हैं, बट हाँ दोनों तीसरा मुकाबला अपने जीत के यहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर हम लखनवी भाषा में मारे तो काफी चौकस मुकाबला देखने को मिलेगा, धमाकेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। जैसा जैसा आपने बताया, काफी चौकस मुकाबला देखने को मिलेगा, काफी चौकस स्टैट्स बताए आपने सचिन भाई, एंड थैंक यू सचिन एंड सभी फॉर दैट नंबर्स। थैंक यू एवरीवन हु जॉइंड अस। आई जस्ट होप लखनऊ के नवाब अगर आज मैच हारे तो अदब ना भूलें, बट yes, jokes aside, we are expecting a hard fought battle today between the Nawabs and Shers. It is not going to be easy for either of the teams, because 2 points के लिए fight बहुत tough होने वाली है। But yes, that is from our end onto our Tigers to steal a win today. Do like the video, comment your thoughts and opinions, and share if you like the content. I am Mohit along with Sachin, signing off.